Now we have so far in current and electricity DC circuits, resistance, internal resistance in a battery, three resistors which are series and in parallel. Now today, beta, I want to start a topic that is Kirchhoff law. Am I audible to you? जी मिस। Okay, so now we have to start the Kirchhoff law. Assalamu alaikum, Mahanur. देखिए बेटा, in Kirchhoff law is basically these are the two principle which we can apply on electric circuit, and these principles are telling us that the energy and charge is conserved in an electrical circuit. All right, I'm repeating, beta. Kirchhoff law is telling us that the energy and charge are conserved in an electrical circuit. Okay, energy will always be conserved. Obviously, energy is always conserved in any circuit or in any day phenomena. All right, energy is always conserved. But when I'm talking about the charge, so charge is also conserved. All right, so there are two laws. Number one is called Kirchhoff current law. इसको हम KCL भी कहते हैं और Kirchhoff first law भी कहते हैं. सेकेंड इज Kirchhoff वोल्टेज लॉ, जिसको हम KVL भी कहते हैं और Kirchhoff वोल्टेज लॉ भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, before starting the Kirchhoff laws, I want to tell you one thing, beta, that what is branch and what is junction or node. Suppose that this is a circuit. In this circuit, there are two components which are connected in parallel. All right. So now the current is flowing from this side. So now this is the point where the current can find two different ways. Number one, current can flow in this direction or current can flow in this direction. Basically, the total current is dividing into two different branches. So these are the branches, and this is a junction which is called node. Okay, this is a junction which is called node, and this node or this junction is dividing the current among two different branches. All right, beta. Now you can see Kirchhoff first law. So what they are saying, the total current entering a junction or node is equal to the charge leaving the node, as no charge is lost. No charge is lost means charge is conserved. So in a simple wording, total current entering into the circuit is equals to total current leaving the circuit. For example, if 2 ampere current is entering from the circuit from the cell, this 2 ampere current is divided by this junction into two different branches. Like suppose that 0.8 ampere current is flowing through this branch and 1.2 ampere current is flowing through this branch. Now this current will combine again at this junction, and the remaining current we will get again 2 ampere. So it means the current was entering from this side and leaving from this side. So total current is same because no charge is lost in the circuit. Charge will remain conserved. So this is called Kirchhoff first law and Kirchhoff current law. Is it clear, beta? जी मिस। Now you can see the next circuit here. All right. Assalamu alaikum, Aisha. Now you can see in this circuit there are three different branches in which from which the current is entering on the node I1, I2 and I3. I1, I2, I3 are the three different branches in the current in the circuit. All right. Through which the current is entering. But at the output you can see there are two branches only. So it means that these three current will be converted into the two branches. But it doesn't mean that the current is lost, charge is lost. Remember, beta, no charge is lost in the circuit. Charge will remain conserved. So now we can say I1 plus I2 plus I3 is equals to I4 plus I5. So it means that the total current entering the circuit is equals to total current leaving the circuit. That is called Kirchhoff current law. Clear, students?
Miss, can you give an example using like numbers? देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 2 एम्पियर करंट इज एंटरिंग थ्रू दिस ब्रांच I1, 3 एम्पियर करंट इज एंटरिंग फ्रॉम I2, and again 1 ampere current is entering from this branch I3. So now if I am saying that this I4 has 2 point में रहने दे बल्कि 3 ampere current. Now calculate the current across I5. So now I will use the formula of Kirchhoff current law, like I1 plus I2 plus I3 is equals to I4 plus I5. So now I1 value is 2 ampere, I2 value is 3 ampere, I1 value is 1 ampere, I4 is 3 ampere. We have to calculate I5. So it's a simple linear equation, students. Now I5 value will be equals to 4 ampere. So now students, you can see at the output the current across the I5 branch will increase. Clear? Yes, Javeria. Right, so what if हमें I4 I5 की values नहीं given? हाँ, अगर वो नहीं गिवन तो फिर ये होगा कि आपके पास एक सर्किट नहीं होगा, वो डिफरेंट लूप सर्किट होंगे, फिर हम लूप एनालिसिस करेंगे, वो एग्जांपल्स मैंने आगे ऐड किए हैं। Okay, Miss. हम एक मिस ये जवेरिया हम दो इक्वेशन बनाएंगे दो डिफरेंट लूप से, फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके करंट की वैल्यू निकालेंगे। जी बेटा। Okay, नेक्स्ट Miss. नबीला। मिस ये I1 + I2 ये फॉर्मूला में है? नहीं नहीं नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है। यहाँ देखें, बेसिकली फॉर्मूला इस तरह हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है कि टोटल करंट एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल्स टू टोटल करंट लीविंग द सर्किट। तो चार्ज इज कंजर्व चार्ज। अब यहाँ पे अगर मैं एक और ब्रांच ऐड कर दूं तो I1 I2 I3 I4 इज इक्वल्स टू I5 प्लस I6 हो जाएगा। तो बेसिकली वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अवर ओन फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द सर्किट रिक्वायरमेंट। ओके। ठीक है। अगर मैं आपको एक सर्किट बना के दूं, जैसे ये यहाँ से एक ये बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे एक लैंप कनेक्टेड है, नहीं बल्कि एक मिनट, ये एक बैटरी है, ठीक है, और ये एक कंपोनेंट लगा हुआ है R1, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और कंपोनेंट लगा हुआ है, फिर ये पैरेलल में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है, फिर ये एक डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है। तो इफ आई विल आस्क यू कि टोटल करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर है, तो ये 2 एम्पियर टोटल करंट यहाँ पे जब आएगा तो इसको डिफरेंट जंक्शंस मिल रहे हैं, ब्रांचेस मिल रही है, दिस वन एंड दिस वन। फिर यहाँ पे जो करंट आ रहा है इसको भी डिफरेंट ब्रांचेस मिल रही है। इसका मतलब ये टोटल करंट 1 2 3 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। अगर मैं ये लैंप हटा के रजिस्टर ही लगा दूं और ये तीनों रजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं तो बेटा 2 एम्पियर करंट तीनों रजिस्टर्स में इक्वली डिवाइड होगा। टोटल करंट तीनों रजिस्टर्स में इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टोटल करंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ऑल राइट। तो जी मिस। एवरी टाइम वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द न्यू फॉर्मूला। थोड़ा सा ये टॉपिक चैलेंजिंग है, ठीक है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले इस सिर्फ ये दो जो स्लाइड है ना स्टार्टिंग की, इसमें सिर्फ मैंने किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है, बाकी जितनी भी स्लाइड्स है सब एग्जांपल्स हैं और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ पास्ट पेपर्स ही करेंगे, समझ लें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट लॉ है क्रिच ऑफ सेकंड लॉ विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिच ऑफ वोल्टेज लॉ, KVL। ये लॉ हमें ये कह रहा है कि सम ऑफ all EMF means suppose that if there are multiple batteries which are connected in the circuit, so total EMF of all batteries is equals to the sum of all potential difference in a loop। यहाँ देखिए, there are two batteries, this one and this one, ठीक है, this one has 12 volt and this one has 3 volt। तो total voltage of both batteries is equals to the potential difference across the sum of potential differences across the component। Like you can see, there is one component that is this resistor and this resistor. Basically these two resistors are the internal resistance of these two batteries and there is only one external resistance। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस का सम
लाजमी बैटरी के टोटल वोल्टेजेस के बराबर आएगा। इसका मतलब ये है कि एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कह रहा है बेटा? एनर्जी, एनर्जी बैटरी से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है सर्किट को। तो एनर्जी कहीं पे भी लॉस नहीं हो रही। ठीक है, एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। अगर आप यहाँ देखें, मैं अगर आपसे कहूँ कि कनेक्ट टू बैटरीज इन अ सीरीज, तो आप बैटरी को कैसे लगाएंगे? पॉजिटिव नेगेटिव, then positive negative. So basically, if the each battery has 2 volt and 2 volts, so total EMF will become 4 volt. Am I right, students? जी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो दोनों ही पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है वी कैन नॉट ऐड देयर वोल्टेजेस एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिल रहा। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव को ही कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एक बैटरी रिवर्स लगी हुई है। अब कौन सी बैटरी रिवर्स लगी हुई है, कौन सी बैटरी फॉरवर्ड लगी हुई है, हमें इसको फाइंड नहीं करना। अब याद है आप लोगों को, जब मैंने वेक्टर्स का टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने वेक्टर्स में कहा था हम वेक्टर की डायरेक्शन एज्यूम करते हैं अपनी मर्जी से। या तो हम वेक्टर्स को का जो क्लोज लूप होता है उसको या तो हम एंटी क्लॉकवाइज ले लें या फिर हम उसको क्लॉकवाइज ले लें। अगर क्लॉकवाइज में वो सारे एरो सेम आ रहे होंगे तो हम उनके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। डू यू रिमेम्बर दिस थिंग? जी। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी हम इन सर्किट्स में भी अप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, ये चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें ये कह रहा है कि टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ का मतलब ये कि जितनी भी बैटरीज कनेक्ट हुई हुई है उन सबका सम, अब यहाँ पे 3 बैटरीज भी हो सकती है, 4 बैटरीज भी हो सकती है, उन सबका सम कंपोनेंट्स जितने भी कनेक्ट हुए हुए हैं उन कंपोनेंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर आएगा। इट मींस नो एनर्जी इज लॉस्ट इन द सर्किट। टोटल इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज दैट इज ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल आउटपुट वोल्टेज दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरीज। यस जवेरिया। लेकिन बस वोल्टेज और करंट तो डिफरेंट यूनिट्स हैं। मैं करंट की बात नहीं करी बेटा, बैटरी का टोटल वोल्टेज। ठीक है, बैटरी का टोटल वोल्टेज दैट इज द इनपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट दैट इज द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ओ ओके जी। फर्स्ट लॉ है। अब अच्छा, अब यहाँ देखें, मैंने आपसे कहा कि एक दोनों बैटरीज के पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइन हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि किस बैटरी को पॉजिटिव लें, किसको नेगेटिव लें। जैसे सपोज करें कि एक बैटरी मैंने आपको दी है 10 वोल्ट की, ठीक है, और दूसरी बैटरी मैंने आपको दी है 3 वोल्ट की। तो ये दोनों बैटरीज अगर देखा जाए रिवर्स लगी हुई है, बिकॉज एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरी बैटरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइन होता है तो बैटरीज के वोल्टेजेस सिंपली ऐड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दोनों बैटरीज रिवर्स लगी हुई है। तो अब सवाल ये है कि हम किसको रिवर्स लें, किसको नेगेटिव लें, किसको पॉजिटिव लें। इसके लिए हम इस लूप को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक बैटरी है ई ए, हमने इसको नाम दिया है, इसका वोल्टेज है 3 वोल्ट और इसकी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है 0.10 ओम। देयर इज अनदर बैटरी, इसको हमने नाम दिया है ई बी, ई स्टैंड फॉर ईएमएफ। ठीक है, और इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 0.20 ओम। देखिए बेटा, बैटरी को पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है ये हम एनालाइज करेंगे इसके करंट की डायरेक्शन से। क्या मतलब? यहाँ देखिए, हम हमेशा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यूं होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन तो ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम कन्वेंशनल करंट को ही फॉलो करेंगे। अब मैंने अपनी मर्जी से हम कोई सा भी लूप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे सपोज करें मैं इसकी डायरेक्शन ले रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैंने लूप की डायरेक्शन ली है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप जरा लूप से ऑब्जर्व करें कि इस बैटरी का करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है। तो इस जो डायरेक्शन में सपोज कर रही हूँ वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका एरो सेम है, तो हम इस बैटरी को लेंगे पॉजिटिव। एम आई राइट स्टूडेंट्स? बात समझ नहीं आ रही मुझे। देखें, मुझे समझ आ रहा है। देखें बेटा,
यहाँ पे दोनों बैटरीज के पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो अब मुझे सवाल ये कि मैं किसको पॉजिटिव लूँ और किसको नेगेटिव लूँ, ये हम एनालाइज करेंगे करंट से। करंट से कैसे एनालाइज करेंगे? करंट के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है या नहीं? अच्छा ये बताएं। कन्वेंशनल करंट जी हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेते हैं ना, पॉजिटिव से करंट फ्लो होता है, नेगेटिव तक जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसी का करंट क्यों ड्रॉ हुआ है? क्योंकि ये बैटरी 12 वोल्ट की ज्यादा वोल्टेज है, इसका वोल्टेज कम है। ठीक है, तो 12 में से 3 तो लाजमी माइनस होंगे, लेकिन सवाल ये कि किसके साथ प्लस आएगा किसके साथ माइनस आएगा। तो इसके लिए ये मैंने अपनी मर्जी से ये डायरेक्शन ले ली है एंटी क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हैं। ये मैंने अपनी मर्जी से एंटी क्लॉकवाइज लूप कंसिडर कर लिया। अब मुझे ये बताएं कि इस बैटरी से जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। हम्म। जी बी बैटरी से जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। अब मुझे बताएं कि इस ईबी बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की डायरेक्शन और मैंने जो लूप कंसिडर किया है एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? जी सेम है। सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब हम ईबी के साथ कौन सा साइन लगाएंगे? पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, हम लोग वही कि हम लोग उसको ऑब्जेक्ट ही कंसिडर कर सकते हैं। ऑपोजिट भी ले सकते हैं, ऑपोजिट से भी बताऊंगी मैं। पहले एक चीज तो पहले पूरा कंप्लीट इसको सुन लें, ठीक? ओके ओके। अच्छा, अब जरा यहाँ देखें, ये जो ई ए बैटरी है, ई ए बैटरी का करंट कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको यूं जाना चाहिए ना। जी लेकिन मैंने जो इसका एरो consider किया वो यूं जा रहा है, इसका एरो इधर जा रहा है। तो ये दोनों एरो सेम है या ऑपोजिट है? ऑपोजिट। हम्म, ऑपोजिट है। तो ई ए के साथ कौन सा साइन आना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? जी अच्छा, अब मुझे बताएं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, टोटल ईएमएफ इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो ईएमएफ थी, हमने ये दोनों ईएमएफ लिख दिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं? देखिए, ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है तो हम एक ही करंट ले रहे हैं, दैट इज कैपिटल आई। मैं यहाँ पे आई ए आई बी नहीं लिख रही, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, एक ही करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज आई। सही। अब ये करंट इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी जाएगा, इसको हमने नाम दिया है R3, इसको हमने नाम दिया है R1, इसको हमने नाम दिया है आर। आर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब तीनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे बताएं, जो लूप मैंने सपोज किया है और करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है या ऑपोजिट है? सेम है। हम्म, सेम है। तो इसका मतलब जब ये करंट यहाँ से पास होगा तो इसकी डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो इस करंट को मैं पॉजिटिव लूंगी। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस क्या आएगा? IR3। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? वेट में से नहीं, ये करंट पास निकल रही है, करंट इसमें से निकल रहा है। ये इस करंट वाले में से निकल रहा में से नहीं निकला करंट इस तरह। किसी देखिए, इस बैटरी और इस बैटरी का जो नेट वोल्टेज होगा उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, और करंट की डायरेक्शन हमें ये दी हुई है। है। क्यों, मैं हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते डायरेक्शन? क्यों? करंट की डायरेक्शन तो बेटा पॉजिटिव तो नेगेटिव होती है ना, हम कैसे अज्यूम करेंगे अपनी मर्जी से? जी ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये करंट यहाँ से पास हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है ना। ठीक है, अब ये बैटरी बड़ी है, इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, तो मैं इसकी डायरेक्शन ही कंसिडर करूंगी कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि यहाँ से करंट पास हो रहा है। अब इस करंट की डायरेक्शन जो इस रेजिस्टर R1 से पास हो रहा है और ये जो मैंने लूप सपोज किया था, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? ऑपोजिट। ऑपोजिट है। जब गौर से देखें, सेम। सेम है। ठीक है, यहाँ देखें, लूप हमने ये ऐसे ही कंसिडर किया ना, तो इस लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये है +IR1। अब ये करंट इसमें से पास होगा इस रेजिस्टर R के थ्रू, तो इस जो मैंने लूप सपोज किया है उसकी डायरेक्शन और इस करंट की डायरेक्शन, एक मिनट बेटा, 1 मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस अब यहाँ से जो करंट इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस पास होगा, दैट बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके बराबर होगा? IR। तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल EMF इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस।
ये पोटेंशियल डिफरेंस इस इंटरनल रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस इंटरनल रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है IR इस एक्सटर्नल रेजिस्टर R के अक्रॉस है। यहाँ तक समझ में आई ये चीज? Yes, जी। miss. ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये मुश्किल है टॉपिक। अभी हम और पास्ट पेपर्स करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, सपोज करें अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट ले लूँ, ये तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज सपोज की हुई है ना, अगर किसी स्टूडेंट ने क्लॉकवाइज सपोज कर ली तो कैसी इक्वेशन बनेगी? तो देखें अब इक्वेशन किस तरह बनाए। हमारे पास किर्चॉफ सेकंड लॉ हमें ये कह रहा है कि सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए कि इस बैटरी से करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू नेगेटिव। ठीक है। अब जरा आप देखें कि अगर मैं इसको यूं लेकर जाऊं इस लूप को, तो इस बैटरी का करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसकी डायरेक्शन सेम हो गई। जी। तो अब ई ए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जरा जो मैंने लूप एज्यूम किया है वो क्लॉकवाइज है, और इस बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब मुझे बताएं ई बी पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग, हम मुझे बताएं कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है और जो करंट की डायरेक्शन अगर आप देखें वो है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और मैंने जो लूप सपोज किया है उसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये तो दोनों ही ऑपोजिट हो गई। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस V3 V1 V2 अपेयर होंगे वो सब नेगेटिव में आएंगे। यानी कि अब मैं लिखूंगी -I R3 -I R1 -I कैपिटल R। तो ये इक्वेशन दोनों सेम है। क्लियर? अस्सलाम वालेकुम। जी मिस। ये चीज समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? आयशा, महानूर, नबीला? Yes, miss. ओके, जी। 1 मिनट, ये आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लें। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ आई एम शोइंग यू वन मोर एग्जाम्पल। जस्ट चेक दिस एग्जाम्पल बेटा, इट्स सिंगल लूप एनालिसिस। ठीक है। यहाँ पे देखिए, दीज आर द टू बैटरीज, नंबर 1 इज E1, ठीक है, एंड नंबर 2 इज E2। अगर आप देखें दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहे हैं, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 3 एक्सटर्नल रेजिस्टर्स हमें लगे हुए नजर आ रहे हैं, R1 R2 R3। ठीक है। और इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r1, और इस बैटरी की कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है। अब देखिए, हम इसके दो तरह से इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। या तो आपकी मर्जी है कि आप इसको क्लॉकवाइज एज्यूम कर लें, या आपकी मर्जी है कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर लें। ठीक है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप इसको क्लॉकवाइज कंसिडर करें या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करें। ठीक है। तो यहाँ देखें, दे हैव कंसिडर्ड फर्स्ट A B C D A, ये तो उन्होंने लूप को नाम दे दिया A B C D A। दैट इज अ कंप्लीट लूप कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर्किट, फिर पूरा कंप्लीट होके यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। अच्छा, अब जरा इस लूप को देखें, इन्होंने कौन सी डायरेक्शन कंसिडर किया आयशा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? कौन सी डायरेक्शन कंसिडर किए आयशा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? जवेरिया? Miss anti-clock. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है। A B C D A ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है।
तो Yeah. क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर किए। पहली बात तो ये कि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर किए, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग, अब देखिए बैटरी एक ये है E1 और एक है E2। अब बैटरी का करंट इन्होंने यहां से शो किया हुआ है कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। E1 का करंट, इसका मतलब E1 बैटरी इज ग्रेटर देन E2, सो दैट्स व्हाई करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। बैटरी की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई होंगी, ठीक है। अब यहां से देखें, ये इस लूप की डायरेक्शन देखें जो हमने सपोज किया है क्लॉकवाइज, और इस करंट की डायरेक्शन देखें, सेम है या डिफरेंट? सेम है। सेम है जी नबीरा। मिस वो जो प्रीवियस पिक्चर के अंदर पॉजिटिव ईएमएफ वाली बात थी वो क्या चीज है? पॉजिटिव ईएमएफ का मतलब समझ में नहीं आई मुझे बात। मिस वो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम्म। ये लिखा है पॉजिटिव ईएमएफ, वो क्या चीज है? कहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव ईएमएफ? डायग्राम। पॉजिटिव ईएमएफ का मतलब यही है कि 12 वोल्ट वोल्टेज ग्रेटर है, 3 वोल्ट वोल्टेज लेस है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये बड़ी बैटरी है, सो वी विल कंसिडर, ट्राई टू कंसिडर इट पॉजिटिव। यानी कि जब देखिए, जब हम लूप सपोज करेंगे ना, तो लूप की डायरेक्शन हमें ऐसे ही रखनी है कि जो बड़ी वाली बैटरी है वो पॉजिटिव हो और जो छोटी वाली बैटरी है वो नेगेटिव हो, राइट। जब मैंने देखिए सेकंड इक्वेशन लिखी थी तो आपने देखा था सबके साथ माइनस साइन आ रहा था, वो माइनस इसीलिए आ रहा था क्योंकि ये बड़ी बैटरी है, तो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और इसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे, इसी तरह से हम लूप एज्यूम करेंगे। क्लियर? अच्छा, नाउ लुक एट हियर बेटा, कि नाउ वी आर सपोजिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हम क्लॉकवाइज सपोज कर रहे हैं, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड, सो इट मींस दैट E1 इज पॉजिटिव। बट देखिए E2 से करंट यूं फ्लो होता है और एरो जो हमने सपोज किया है वो क्लॉकवाइज है, तो दीज टू डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, सो इट मींस E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंसेस कौन कौन से आ रहे हैं, कितने पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं, 3 एक्सटर्नल रेजिस्टर्स हैं और एक इंटरनल रेजिस्टर है, यानी कि 4 पोटेंशियल डिफरेंसेस के बराबर होगा। तो आई इससे पास होगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा आई कैपिटल R1 प्लस, प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन सेम आ रही है। करंट की डायरेक्शन और इस लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम है। आंटी बस 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद जब करंट इससे पास होगा तो इट विल बिकम IR2, ठीक है। देन करंट विल पास थ्रू दिस वन, इट विल बिकम IR3, एंड द करंट विल पास थ्रू दिस इंटरनल रेजिस्टर, सो इट विल बिकम IR1। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों बैटरीज का सम का ईएमएफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस दिस सर्किट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? अब जरा ये वाली इक्वेशन मुझे बना के दिखाएं, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। जी बेटा, डन। आई थिंक इसमें एक इश्यू, लाइक इसमें कोई चीज रॉन्ग है, इधर आई ही आना चाहिए कि दिस नॉट अ इंटरनल रेजिस्टर। भाई आई की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है ना, अगर मैं ये ब्राउन वाला एरो देखें जो कंसिडर किया है इन्होंने, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में देखें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है तो सबके साथ नेगेटिव साइन आएगा नहीं सब। मिस, हम्म।
मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आई नहीं आना चाहिए, बस आ आना चाहिए, क्योंकि इंटरनल किसी किसी का इंटरनल नहीं है ये, दिस इज जस्ट अ रजिस्टर। बेटा वोल्टेज है ना जवेरिया, वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का। आई क्यों नहीं आएगा? क्यों मतलब कि इंटरनल? नहीं, आर वन तो एक्सटर्नल रेजिस्टर है। इस तो एक्सटर्नल यहाँ पे आई से लिखा हुआ है। एक्सटर्नल रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है जवेरिया? वी इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला होता है ना। ओके। पोटेंशियल डिफरेंस है ना। यहाँ देखें, हमारे पास किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, आई आर वन आई, ये सब पोटेंशियल डिफरेंसेस है, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दीज रेजिस्टर्स। ऑल राइट, चलें हम जी। क्वेश्चन देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही समझ में आने लगेंगी चीजें। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ये देखें डिफरेंट इक्वेशंस, किस तरह से इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, नाउ लुक एट दिस सर्किट। यहाँ पे देखें, ये एक सेल है, बैटरी कह लें इसको, इसकी ईएमएफ है E1 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, इस बैटरी की ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टर है R2, और इस बैटरी की ईएमएफ है E3, इसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है R3। ठीक है, और यहाँ देखें R1, R2, R3, R4, नहीं ये R5 है, R4 एंड R5, 5 एक्सटर्नल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और 2 इंटरनल रेजिस्टर्स हैं। जी बेटा जवेरिया। लेकिन मिस यहाँ पे तो इसका नेगेटिव इसकी पॉजिटिव से मिला हुआ है, तो ये तो ऐसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इसका नेगेटिव इसकी पॉजिटिव से मिला हुआ है। हम्म, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव से बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ पे एक नोड आ रहा है, जंक्शन आ रहा है। ओ, ओके। जी। देखा जाए ये यूं कनेक्शन बन रहा है, यूं कनेक्शन बन रहा है ये। ठीक है, अच्छा बहरहाल यहाँ देखिए, ये हमने इसको लेबल कर दिया A B C D E F, डिफरेंट पॉइंट्स लेबल कर दिए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो ये वाला लूप कंसिडर कर रही हूँ, दिस वन, A B E F A, ये कंप्लीट लूप ले रहे हैं। ठीक है, इस कंप्लीट लूप के लिए सिर्फ यहाँ पे मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि इक्वेशन बनानी कैसे है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, इस सर्किट को हम सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो वी आर कंसिडरिंग A B E F A। अब आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लू कलर के एरो को देखें, इन्होंने कौन सी डायरेक्शन ली है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। ठीक है, अच्छा क्लॉकवाइज। अब देखिए करंट जो है E1 से जो फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये देखिए I1 का एरो भी दिया हुआ है। अब हमारा एरो देखे, जो हम सपोज कर रहे हैं, इस करंट का एरो दे देखिए, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है, जी। डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो मुझे बताएं ये E1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, तो यहाँ देखिए E1 नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें इस लूप में जो हम लूप कंसिडर कर रहे हैं A B E F A, इसमें ये E3 बैटरी भी आ रही है। ठीक है, E3 बैटरी में करंट पॉजिटिव से यूं जाएगा ना, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। अब आप देखें ये एरो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, ये भी क्लॉकवाइज है, जी। क्लॉकवाइज है, तो E3 पॉजिटिव आएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए इस लूप जी। में सिर्फ दो ही बैटरीज हैं, तो इन दोनों के ईएमएफ का सम बराबर होगा सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस दिस लूप। तो कितने पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगे? जितने रेजिस्टर्स हैं, जितने रेजिस्टर्स हैं उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। तो एक रेजिस्टर है इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की E1 R1, ये एक R3 है, एक R2 है, एक R1 है। अब देखिए सब में चूंकि करंट की डायरेक्शन हमें ये दी हुई है, तो करंट की डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट है सब में, तो यहाँ देखें डिफरेंट करंट दिए हुए हैं। यहाँ पे बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1, क्योंकि ये एक लूप है। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी का करंट दिया हुआ है I2। ठीक है, अब जरा अगर आप इसको गौर से देखें, इस एरो को एज्यूम करें तो I1 इस R1 से फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अब मुझे बताएं इस करंट की डायरेक्शन और इस एरो की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव? करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना करंट, नेगेटिव। तो यहाँ देखिए नेगेटिव। I1 R1 नेगेटिव में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये करंट यू जा रहा है R2 के अक्रॉस, और जो हमने लूप एज्यूम किया है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये करंट I1 और R2 नेगेटिव होंगे, राइट।
अच्छा, अब जरा यहाँ देखें, इस सेल के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है उसको नाम दिया है हमने I2 का। I2 की डायरेक्शन अगर आप देखें, I2 की डायरेक्शन ये दी हुई है, ठीक है। तो I2 की डायरेक्शन और इस लूप जो हम सपोज कर रहे हैं, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो I2 और R1 ये दोनों, I2 किस रेजिस्ट, नहीं R3 से फ्लो हो रहा है, सॉरी बेटा, माय मिस्टेक। I2, चूंकि यहाँ पे R3 इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है ना, सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब I2 और R3 भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अगर आप देखें कॉन्ट्राडिक्ट करिए, ऑपोजिट है। ऑपोजिट जो हमने लूप सपोज किया उससे ऑपोजिट है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। ये तो बहुत मिस मुश्किल यहाँ इन्होंने चीजें दी हुई हैं, वैसे इतने मुश्किल क्वेश्चंस आते नहीं है। जी बोले। यहाँ पे वो पहले कह रहा है I2 पे वो I1 की लिखी, कैसे पॉसिबल है? दोबारा बोले, सवाल क्या पूछा आपने? यहाँ पे I2 था, फिर I1 हो गया। I2 और I1 नहीं हुआ, यहाँ देखें हम सबके पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम निकाल रहे हैं जवेरिया। I1 करंट इस रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो होगा, क्योंकि ये सीरीज में इसी बैटरी के साथ है ना, सीरीज में है। तो इसका हम्म, मतलब है कि इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो I1 होगा। तो I1 R1 नेगेटिव साइन के साथ आएगा। फिर इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो भी I1 होगा, क्योंकि ये भी सीरीज में है। तो इसका मतलब I1 R1, यहाँ पे स्मॉल R1 ये रहा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज यहाँ लिखी हुई है। और आर टू के अक्रॉस भी I1 फ्लो हो रहा है, ये भी नेगेटिव के साइन के साथ आ रहा है। लेकिन इस बैटरी के साथ जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है, और R3 इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू I2 R3। ये नाम चूंकि करंट डिफरेंट दिए हुए हैं इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जी बेटा नबीना। जी नबीना। I don't get how R3 will be negative. दोबारा बोले। I don't get how R3 will be negative, क्योंकि देखें, अगर R3 से यूं जा रहा है तो ये करंट की डायरेक्शन तो देखें।